गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपको मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? अभी आ रही है? अभी आ रही है? अभी आ रही है? माइक कनेक्ट है? अभी पीछे तक सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है पीछे तक? We learn today developmental psychology. आप लोग आगे आ जाइए, जो भी आ सकते हैं। Today is the topic of child psychology, and we started from the developmental psychology. What is developmental psychology? The scientific study of biological, social, and personality development across the lifespan. अभी आवाज आ रही है पीछे तक? Good. इसको नेक्स्ट करो. Development, progressive change in behavior and abilities. Change may be qualitative or quantitative, and change in functioning may be physical shape, and or psychological. In psychological, cognitive, and socio-emotional development. Developmental changes are tied to age and are generally permanent. अभी पीछे तक आवाज आ रही है? Please come. The fundamental question is what causes development? Nature or nurture? Nature development is programmed in genetically and follows a biological blueprint, and nurture development is determined by how the child is raised, thus by the environment. And child psychology deals not only with how children grow physically, but with their mental, emotional, and social development as well. Development refers to change or growth that occurs in a child during the lifespan from birth to adolescence. Please come. Physical development refers to physical changes in the body. These changes are bone thickness, size, weight, gross motor, fine motor, vision, hearing, and perceptual development. The infant repeats motor actions which serve to build physical strength and motor coordination. Sorry?
ओके ठीक है। चेंजेस इन फिजिकल स्किल्स फॉल इनटू टू मेन एरियाज ऑफ डेवलपमेंट. First one is gross motor development and second one is fine motor development. In gross motor, improvement of skills and control of the large muscles of legs, arms, back and shoulders which are used in walking, sitting, running and jumping, climbing. Means gross motors में जो हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ है, लाइक हमारे हाथ पैर इन सब का मसल्स, ये सब डेवलप होता है जिनके थ्रू हम चलते हैं, दौड़ते हैं एक्सेट्रा. Fine motor use of the small muscles of the fingers and hands for activities such as grasping objects, holding, cutting, drawing and writing. Means फर्स्ट वन इज कि जिस चीज को हम फिजिकली स्ट्रेंथ के थ्रू आते हैं, बट सेकंड है ग्रेस्प, हमारी पकड़. उसमें हम लिखना हो गया, खाना हो गया, किसी चीज को ड्रॉ करना हो गया, मींस हम उस चीज को पकड़ पा रहे हैं, हमारी ग्रेस्प कैसी है, उस तरह का डेवलपमेंट. नेक्स्ट मोटर डेवलपमेंट. Physical development is orderly and occurs in predictable sequence. The motor sequence for infants involve the following orderly sequence. Means इसमें infants का development जो होता है वो हम कुछ time के through देखते हैं कि किस तरह से कितने time period में उसका development proper हो रहा है या फिर उसमें कुछ problems हैं. Few months after birth. हम इसमें देखते हैं few months means 3 months after birth to 3 months. Head and trunk control means जब हम बेबी को इन केस हम उसे उठाते हैं तो वो अपना हेड कंट्रोल कर पा रहा है. Infant lifts head, watches a moving object by moving the head from side to side. जब 3 months तक का बेबी होता है, वो कहीं पे भी लेटा है या जैसे भी है, तो आप साइड से निकलते हैं या कोई भी पर्सन निकलता है तो बेबी उसको मूव करके देखता है. कई बार आपने देखा होगी कोई कलरफुल चीज होती है तो बेबी उसकी तरफ एकदम मूव करता है, या कोई चीज हिल रही होती है, होता है ना. कई बार हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट से उसको दिखाते हैं या कोई साइड से निकलता है तो वो अपने हेड को मूव करता है. इट्स अ नॉर्मल डेवलपमेंट. In 4th or 5th month, infant rolls over, turning from the stomach to the back first, then from back to stomach. इसमें आपने देखा हो कई बार बच्चे ना बेड पे लेटे होते हैं, गिर जाते हैं, उनके पास कोई नहीं होता बट रोल ओवर होते हैं, वो पलटी खाना जिसको बोल देते हैं हम नॉर्मली. तो ये एक नॉर्मल डेवलपमेंट के अंदर आता है कि अगर बच्चा ये कर रहा है 4th to 5th मंथ के पीरियड में, दैट इज अ नॉर्मल डेवलपमेंट. मीन्स उसका जो मोटर डेवलपमेंट है वो उसका अच्छा है, राइट. इन 4 to 6 months सिट अपराइट इन अ हाई चेयर. मीन्स वो बैठना स्टार्ट कर देता है. 6 मंथ के अराउंड बेबी जो भी है वो बैठना शुरू कर देता है. इट्स अ नॉर्मल डेवलपमेंट. इसके बाद मतलब आफ्टर 6 months infant gradually is able to pull self into sitting positions, right, and then stand with help as arm and leg become stronger. जब बेबी उसके हैंड्स एंड लेग्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो किसी भी चीज को पकड़ के खड़ा होना शुरू कर देता है. Approximately 1 year, stand while holding on to furniture. उसके बाद वॉक विद हेल्प विद बेटर लेग स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन. बच्चा कब चल पाता है? सॉरी, आफ्टर 1 year चल पाता है. बट कब कब पॉसिबल होता है? जब उसकी मोटर जो डेवलपमेंट है उसका बेटर, मतलब लेग स्ट्रेंथ उसका बेटर हो जाता है. इन सम केसेस
if baby is weak and can't coordinate with their legs, then can he or she walk? वो नहीं चल पाएगा, टाइम लेगा मे बी, जो भी वीकनेस रहेगी उसके बाद, बट इन केस अगर उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, देन ही कैन वॉक. पुल सेल्फ अप इन अ स्टैंडिंग पोजिशन, अपने आप को खड़ा करना, राइट. स्टैंड अलोन विदाउट एनी सपोर्ट, इसके बाद जब वो पहले वो हेल्प के साथ सपोर्ट करके वो खड़ा होता है, बट इसके बाद वो खुद से होने शुरू कर देता है विदाउट एनी हेल्प, एनी सपोर्ट. और जब खड़ा होना शुरू कर देता है उसके बाद वॉक अलोन विदाउट एनी सपोर्ट और हेल्प, वो खुद से चलना शुरू कर देता है. सीक्वेंस और डेवलपमेंट दैट लीड्स टू वॉकिंग, शेरलिन 1933 के अकॉर्डिंग उन्होंने इसकी पोजीशंस बताया, किस तरह से बच्चा शुरू से वो चलने तक का उसका जो सीक्वेंस है वो ये रहता है. देख पा रहे हैं आप सब लोग? इसके बाद आता है रिफ्लेक्सेस. A reflex is an automatic body response to a stimulus that is involuntary. मीन्स जो चीजें उसके जो चीजें मतलब इनवॉलेंट्री, मतलब अनैच्छिक, उसके लिए जो अच्छी नहीं होती है, उसके लिए वो रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है ऑटोमेटिकली. द प्रेजेंस ऑफ रिफ्लेक्सेस एट बर्थ इज एन इंडिकेशन ऑफ नॉर्मल ब्रेन एंड नर्व डेवलपमेंट. अगर बच्चा रिफ्लेक्सेस कर रहा है, इसका मतलब उसका ब्रेन डेवलपमेंट नॉर्मल है. लेकिन अगर वो किसी भी चीज को जिसको वो नहीं चाहता है और वो चीजें उसके साथ की जा रही हैं, कई बार होता है ना, हम बच्चे को कहीं से भी छेड़ते हैं और वो होता है कि मतलब ऐसे थोड़ा चिड़चिड़ा सा होता है, लेकिन अगर वो नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा पुअर है, स्लो है. ठीक है. Brain or nerve damage is suspected if the reflexes continue past the time they should disappear. Types of reflexes. First one is rooting or shucking reflex. आपने देखा होगा लगभग 2 महीने तक के बच्चे ऐसे होते हैं, उनके पास कुछ भी जाएगा मुंह के पास, दे स्टार्टेड शकिंग, राइट. इसमें है causes infants to turn their head towards anything that brushes their faces. क्लियर है कि जब भी हम उनके फेस पे कुछ करते हैं, दे स्टार्टेड कि उन्हें कुछ है जो उन्हें चाहिए, तो like intention for shocking. This reflex also helps the child get food and usually disappear by 3 weeks of age. 1 month to 2 month इसका पीरियड रखा गया है कि इसके बीच में ही बच्चा करेगा, आफ्टर 2 मंथ वो डिसअपियर होते जाता है, जो उसका वो शकिंग बिहेवियर है. नेक्स्ट है मोरो रिफ्लेक्स. occurs when a newborn is startled by a noise or sudden movement.
कोई भी ऐसी चीज देखेगा तो वो क्या करेगा बच्चा, जिसके पास भी होगा उसे चिपकने की कोशिश करेगा, राइट। रिफ्लेक्स पीक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ एंड यूजुअली डिसअपियर आफ्टर 2 months। ये भी सेम पीरियड का ही है। समझ पा रहे हैं आप लोग? पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स, इसमें यही होता है। ये अगर नहीं, आपने जब भी टच किया होगा बेबी को, उसका रिफ्लेक्स आता है ये। बेबीज की रिफ्लेक्स इज द सेम। नेक्स्ट, स्टेपिंग और वॉकिंग रिफ्लेक्स। कई बार वो नहीं चलना चाहता एंड वी वांट्स कि वो पैर नीचे रखे, चाहते हैं, और वो कई बार क्या होता है पैर ऊपर उठा लेता है बेबी। In cognitive development, vision is second one. At the birth, an infant's vision is blurry, means वो clear नहीं देखता है। Focus in a center visual field during the first few weeks after birth. Near vision is better developed than their far vision. मीन्स उसका स्टार्टिंग वाला जो है, जो पास वाला है, वो जल्दी डेवलप होता है। उसके बाद फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स हेल्ड 8 to 15 इंचेस इन फ्रंट ऑफ देम। मीन्स वो बहुत ज्यादा दूर का नहीं पहले स्टार्ट होता है, उनका डेवलप जो है विजन वो पास से शुरू होता है। इन्फेंट्स प्रीफर बोल्ड कलर टू सॉफ्ट पेस्टल कलर। जैसे मैंने कहा ना, कोई भी चीज जो कलरफुल चीज होती है, मीन जो बहुत जल्दी अपियर होती है या बहुत दूर से बहुत जल्दी अपियर होती है, उनकी तरफ वो मूव बहुत जल्दी करते हैं। मीन्स उनका जो अपियरेंस होता है वो बोल्ड कलर पे पहले जाता है। शो विजुअल प्रेफरेंस फॉर फेसेस मोर देन ऑब्जेक्ट्स। आफ्टर 1 month their gaze is on the hairline of a parent or other caregivers. आप सुन पा रहे हैं? By 2 months of age, an infant prefer gaze at a smiling face than at a face without expressions. Means 2 month का बच्चा जो स्माइलिंग फेस है, जो उसे अच्छे से लाइक कोई भी एक्सप्रेशन अच्छे से दे रहा है, तो वो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देता है, उसकी तरफ ज्यादा देखना पसंद करता है। उनके अकॉर्डिंग, उनके मुकाबले जो लोग बहुत न्यूट्रल एक्सप्रेशंस के साथ होते हैं और बहुत ज्यादा अच्छे से उसको स्माइल नहीं कर रहे होते हैं। At 2 months show more interest in the faces. 2 मंथ के बच्चे फेसेस पे ज्यादा ध्यान देना शुरू करते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उसमें। हियरिंग develops early in life even before birth. वो बर्थ से पहले ही सुनना शुरू कर देते हैं। आपने एक कहानी में भी आप लोगों ने सुनी होगी, कहानी नहीं है, एक्चुअल रियल है, जो महाभारत में है। अभिमन्यु को बोला जाता है कि वो पहले, जब वो मतलब उनका प्रेगनेंसी से पहले, जब उनकी मदर और उनके फादर बात कर रहे थे, तो वो एक चक्रव्यूह की बात कर रहे थे। चक्रव्यूह था, चक्रव्यूह की बात कर रहे थे, तो वो बीच में सो जाती हैं। मीन्स वो चक्रव्यूह में जाना तो सीख लेते हैं, उसके बाद उनकी मदर सो जाती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर वो नहीं सोते तो शायद वो निकलना भी सीख जाते हैं। मीन्स इट प्रूव्स कि वो बर्थ से पहले बच्चा सुनना सीख जाता है। और इसीलिए बोला जाता है कि हमें, या मतलब जो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, उनको अच्छी चीजें या अच्छी चीजों पर ज्यादा सुनना चाहिए और अच्छे लोगों की बातों को ध्यान देना चाहिए। क्लियर है? Infant from birth turn their heads toward source or direction of sound. जब वो सुनना शुरू कर देते हैं, मतलब पैदा होने के बाद से जब सुनना शुरू कर देते हैं, तो कोई भी साउंड होता है, आपने देखा खिलौने को जब हम ऐसे करते हैं तो बच्चा
अपने हेड को मूव करता है, इसका मतलब दैट्स अ नॉर्मल डेवलपमेंट। अगर वो मूव नहीं कर रहा है तो देयर इज समथिंग प्रॉब्लम। Newborns are soothed to sleep by rhythmic sound such as lullaby, means बच्चे लोरी सुन के सोना पसंद करते हैं, मीन्स वो रिदम्स को पसंद करते हैं। 3 weeks old newborn can distinguish between mother's, father's and stranger's voice, मीन्स 3 हफ्ते का बच्चा डिफ्रेंशिएट करना जान जाता है, या ये कह सकते हैं कि वो इस चीज को समझने लगता है कि उसके मदर फादर की वॉइस एंड स्ट्रेंजर्स वॉइस क्या है, किसकी है, राइट। एट 3 to 6 months वोकलाइजेशन बिगिंस टू इंक्रीज। आपने देखा होगा बच्चा कुछ भी आ बा निकालना शुरू कर देता है, मीन्स वोकलाइजेशन उसका शुरू हो जाता है। परसेप्शन, young children think with their sense of humans, they form perception of their sensory activities. Sensory perceptual development is information collected through senses and the ideas formed about object or relationships. Eleanor Gibson and Richard Walk 1960, they wanted to know if depth of perception is a learned behavior or if it is something that we are born with. Campus Larger, Langer and Crowitz 1970 said did same experiment to measure heart rate and found that even 1.5 month old infants showed increased heart rate when placed to deep side. मतलब जब भी कोई बेबी अगर बेड पे है और अगर वो किसी मतलब जहां नीचे है, नीचे की साइड अगर वो गिर रहा है, तो आप कभी भी देखना बच्चे की हार्ट रेट बहुत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसने डेप्थ को देखा है, मतलब डीप में देखा है। इसके बाद आता है स्पीच। स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ यूजफुल इंडिकेटर ऑफ अ चाइल्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट। Identification of children at a risk of development delay or related problems may lead to intervention and assistance at a young age when the chances for improvement are the best. अगर किसी वजह से बच्चा टाइम से नहीं बोल रहा है, अगर मैं एक आपसे आइडिया लूं कि बच्चा कितने टाइम में बोल पाता है, बोलने शुरू करता है, लगभग लगभग 1 साल से वो बोलना शुरू करता है, बाबा पापा, लाइक यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है। तो इन केस अगर उसका डिले हो रहा है, आप प्लीज इधर देख, प्लीज प्लीज इधर शांत हो जाइए। इन केस अगर उसका डिले हो रहा है, उसका फर्स्ट सेंटेंस या फर्स्ट वर्ड ही डिले हो रहे हैं, तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए मतलब एक कह सकते हैं पॉजिटिव वे है कि उसको बहुत जल्दी चीजों को पहचाना जा सकता है कि बच्चा लेट बोल रहा है। और लेट बोलने का मतलब बाकी चीजों में भी वो पीछे हो रहा है, ठीक है। और अगर टाइम से चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो बेटर चांसेस होते हैं कि उसको इम्प्रूव करने के। दिस कैन लीड टू द ओवरऑल एकेडमिक अंडर अचीवमेंट एंड अ लोअर IQ दैट मे परसिस्ट इनटू यंग एडल्ट। जब वो बोलना ही नहीं सीखेगा तो स्टडी में उसको प्रॉब्लम्स आएंगी, अचीवमेंट्स में प्रॉब्लम्स आएंगी, राइट।
First sign of communication occur when infant learns that a cry will bring food, comfort. अगर बच्चे को ये पता है मेरे रोने से खाना आएगा तो वो क्या सीखा उसने? By 6 months of age, most babies begins to recognize basic sounds of their native language. Speech milestone. According to American Association of Pediatric Dentistry, 0 to 3 months. Babies learns to turn smile to people when they hear someone's voice. Recognize familiar voice. अभी अभी जो मैंने आपको थोड़ा पहले बताया था वही चीज है ये. If babies cry will quieten at the sound they recognize. Under 3 months will stop activity and closely attend to sound of unfamiliar voice. Respond to comforting voice, familiar or not. Initially babies क्या करते हैं? Cooing, repetition of all sound by infants, and then they start babbling, repetition of meaningless language sounds. कौन से साउंड्स होते हैं जो मीनिंगलेस होते हैं और बेबीज करते हैं? अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 months. कौन से साउंड्स होते हैं? Nice. Anyone? You hear sometime बा बा लंबा लंबा खींचते हैं वर्ड्स को. Hollow phrases. Hollow phrases. Child expresses a complete thought in single words. कभी देखा कोई एक वर्ड बोला और उसकी डिमांड पूरी हो जाती है? होता है. Telegraphic speech. 2-word sentences that communication a single idea. कोई भी 2 वर्ड्स ऐसे बोले जो उसको चाहिए एंड देन उसको मिल जाता है, क्योंकि इनिशियली बच्चा पहले 1 वर्ड सीखता है, देन धीरे धीरे उसकी चीजें ग्रेजुअली बढ़ती हैं. तो पहले 1 वर्ड से इंडिकेशन शुरू करता है, देन 2 वर्ड से. Four to 6 months, babies respond to word, no chuckles or giggles. Responsive to changes in tone of voice, makes giggling sounds when left alone or when playing with someone. Fascinated by toys and other objects that make sound like clip clop of horses bird songs. देखा है बच्चे पोएम्स बहुत अच्छे से सुनते हैं. और आजकल सब लोग ज्यादातर लोग मोबाइल्स यूज करते हैं, तो कभी भी देखना बच्चों को ज्यादा पसंद वही आती हैं जिसमें साउंड्स इस तरह की आती हैं, क्लिप क्लॉप, राइट. 7 to 12 months, babies listen when spoken to, turns and look at face when called by name. अगर आप उनके नाम से बुलाते हैं तो वो आपको देखते हैं. आप सुन पा रहे हैं पीछे? They recognize the name of familiar objects like daddy, car, phone. Begins to respond to requests like give it to granny and questions more juice. 1 to 2 years, say more words every month. Puts words together. होता है ऐसा 1 to 2 years में? Use 1 or 2 words question. ऐसा क्यों होता है ना?
अब क्यों क्वेश्चन स्टार्ट शुरू कर देता है बेबी 1 to 2 years में. 2 to 3 years has a word for almost everything and uses 2 or 3 words to talk or ask or things. Means जैसे मैंने बोला ग्रेजुअली बच्चा सीखता है, पहले वो 1 word पे आया, देन 2 words, देन 3 एंड देन फिर सेंटेंसेस. Speech is understood by familiar listeners most of time and often asks for something by naming them. 3 to 4 years. Talk about activities at school or at friends' home. Means अब वो थोड़ा बोलना शुरू कर दिया है. People outside family usually understands speech and uses sentences that have 4 or more words. Usually talk easily without repeating words. In 4 to 5 years, uses sentences that give lot of details. अब बच्चा बहुत सारी बातें बनाना शुरू कर दिया है. अगर उसको किसी बच्चे से लड़ाई हो गई है देन वो डिटेल्स में बताएगा. कम्युनिकेशन इजीली विद अदर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स. होता है ना, कोई आया गेस्ट तो बच्चे से क्या बोलते हैं, बच्चे पोएम सुनाओ, कुछ भी ऐसी चीजें होती है जो उससे हम एक्टिविटी शुरू करा देते हैं. होता है बच्चे उस चीज में आगे एक्टिव हो जाते हैं. और ये कब होता है, जब उनका डेवलपमेंट प्रॉपर नॉर्मल चल रहा है. Say most sound correctly except a few like says, rhyming words and name some letters and words. Use grammar as rest of family. Please. Major context of child psychology. Some of the major context that we need to consider in analysis of child psychology include social, cultural, and socio-economic context. Social context, relationship with peer and adults have an effect on how children thinking, learning, and developing. बच्चा कैसा सोचता है, क्या सीख रहा है, उन सब का इफेक्ट किस पर आता है, उसके पीयर्स पे, फ्रेंड्स पे, रिलेशनशिप्स पे. अगर बच्चा किसी एनवायरनमेंट में, मतलब ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ पे चीजें नॉर्मल नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स है फैमिली में, तो बच्चा अपने फ्रेंड्स में भी बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली नहीं बिहेव करेगा. वो कैसे रिएक्ट करेगा? बिल्कुल. Families, schools, and peer groups all make up in an important part of the social context. जैसे अभी बोला families का इफेक्ट आया. Schools and peer groups all make up an important part of social context. ये सारी चीजें मिलके ही बच्चे को सोशल डेवलपमेंट के लिए इन्फ्लुएंस होता है. उसका डेवलपमेंट इन्हीं सब चीजों के थ्रू रेज होता है. Cultural context contributes a set of values, customs, and ways of living that influence development throughout the lifespan. हम जिस कल्चर में रहते हैं उसमें वैसा ही सीखते हैं. जब हम दूसरे कल्चर में जाते हैं तो क्या होता है, कुछ डिफरेंट ही लगता है, राइट? तो जो वैल्यूज हैं, जो कॉन्ट्रीब्यूट्स है, वो हम अपने ही, या ये कह सकते हैं बच्चा अपने ही कल्चर में रह के उन चीजों में डेवलप्ड होता है. How children relate to their parents, the type of education they receive, and the type of child care that is provided.
The socio-economic context based upon factors including how much education people have, money they earn, the job they hold and where they live. मीन्स जहां पे बच्चा बड़ा हो रहा है उसके पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो आई वॉन्ट टू से प्लीज, जो लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से अटेंटिव हैं वो बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, बट जो नहीं है तो प्लीज आप शोर मत करिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो शायद ध्यान दे रहे हैं, शायद नहीं ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज आप शांत रहिएगा। बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रहता है, अगर हम सोशो इकोनॉमिक की बात करें, आपने देखा होगा किसी पुअर फैमिली से बच्चा जो होगा या फिर किसी रिच से होगा या मिडिल से होगा, सबका लिविंग स्टाइल डिफरेंट होगा, उसका डेवलपमेंट भी उसके अकॉर्डिंग ही होगा। और अगर हम एरियाज की बात करें, किसी क्राउडेड एरिया में रह रहा है, किसी पोर्स एरिया में रह रहा है, किसी शांत में रह रहा है, तो हर चीज का जो इफेक्ट है वो बच्चे के डेवलपमेंट पे कंप्लीटली आता है। राइट, क्लियर है? Children with lower socio-economic status have less access to opportunities, healthcare, quality, nutrition and education. That's clear? जिनके पास बहुत सारा पैसा नहीं है वो क्या करेंगे, बहुत सारा इवन इनफ पैसा नहीं है, मे बी उनकी एजुकेशन रुक जाए, राइट? उनकी अपॉर्चुनिटीज उतनी ना मिले जितना वो चाहते हैं, जितना शायद हर कोई सपने देखता है, तो मे बी उनके सपने पीछे रह जाएं, हेल्थ केयर में कॉम्प्लिकेशंस आएंगी और क्वालिटी न्यूट्रिशन ऑब्वियसली अफेक्ट होंगी। Social development. Babies interact with their environment and other by the movement of their eyes and limbs. They tend to form specific attachments to people and prone to separation anxiety. Anxiety separation remains high till 5 years. Attachment is the strong emotional tie felt between the infant and significant other. जो भी बच्चों से बहुत ज्यादा अच्छे से बिहेव करता है तो ऑब्वियसली उसके साथ उसका अटैचमेंट अच्छा होता है। क्वालिटी ऑफ अटैचमेंट डिपेंड्स अपॉन द एडल्ट्स। इट्स क्लियर? हमारा जैसा बिहेव होगा बच्चे हमसे उसी तरह से अटैच होंगे। जो हमारा अगर कोई घर का बड़ा, अगर हम घर की ही बात करें, अगर कोई घर का बड़ा मेंबर अगर रूडली बच्चे से बिहेव कर रहा है तो बच्चा उसके पास बैठना पसंद करेगा। तो यही चीजें अटैचमेंट में आती हैं। जो बहुत अच्छे से सुनेगा, उसकी बात पूछेगा, तो उसको क्या होगा, वहां पे अटैच होगा। When attachments are formed, young infants learn that they can depend on mothers, fathers, caregivers, or older siblings to make them feel better. Separation anxiety. When a familiar caregiver is leaving, child shows distress by often crying when unhappy. अगर कोई फैमिली मेंबर बच्चे को परेशान देख के उसे छोड़ देता है, जाने दो छोड़ो, तो बच्चा क्या करेगा? दुखी भी होगा, अकेले में रोएगा भी, राइट? First sign of separation anxiety appears at about 6 months of age. More clearly seen by 9 months of age and very strong by 15 months of age. Parents and other caregivers need to understand and prepare for this attachment behavior in children by making transitions easier for the child. Children between the age of
9th and 18th months will usually have a lot of difficulty beginning a child care program. Transition can be easier by bringing the child's favorite toy or blanket along. Separation anxiety as a normal developmental process. Children will gradually show less distress as the setting, the people and routines become more familiar to them. Emotion development. Emotion derived from a Latin word emovere, which means stir up. The core of emotions is feeling. Emotion may be either positive or negative. Humor is positive emotion and anxiety is negative emotion. Emotion may be constructive in nature or destructive in nature. Characteristics of emotional development. Early childhood. Emotions are frequent. They express common emotional expressions like anger, joy, fear, etc. Emotion is related to concrete object. Children need to concrete object for the occurrence of emotions. Emotion development, social emotional development. Emotion development, expression of feeling about self, other and things. And social development, learning to relate others. Emotional and social development are closely interrelated growth pattern. ये दोनों ही जो डेवलपमेंट है एक दूसरे से रिलेटेड है. Feelings of trust, fear, confidence, pride, friendship and humor are all part of social emotional development. हमें कौन सी चीज कहाँ एक्सप्रेस करनी है ये हमारे सोशल इमोशनल दोनों का एक साथ ही हमारा रिलेट होके प्रेजेंट होना होता है, राइट. Learning to trust and show affection to others is a part of social emotional development. Child's relationship is a trusting and caring adult is a foundation of emotional development and personality development. When a child has been neglected, rejected, and does not feel secure, he has difficulty developing skills to socialize with others. अगर हम किसी बच्चे को बाहर नहीं निकलने देंगे, सोशल नहीं होने देंगे, नहीं नहीं तुम बाहर मत जाओ, बाहर का एनवायरनमेंट ऐसा है या ये सब है, तो बच्चा चीज़ों को सीखने के लिए पीछे रह जाता है. मीन्स वो उन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाता है, फेस नहीं कर पाता है एंड इन फ्यूचर उसका वो डेवलपमेंट वहाँ रुक जाता है. मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है. कोई बच्चा सब कुछ जानता है. अगर हम स्टडी की बात करें, क्लास की बात करें, कोई बच्चा सब कुछ जानता है, पढ़ाई में ठीक है, अपने टॉपिक से रिलेटेड कंफर्म है, बट उसे एक एंजाइटी है स्टेज पे आने की. ठीक, वो अपने आप को पीछे करता है, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, या बाकियों के अकॉर्डिंग उसको पीछे कर दिया जाता है कि तुम कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाओगे, उसे रोक दिया जाता है. तो इन फ्यूचर अगर उसे एक दो बार और रोका गया तो क्या वो फेस करने के लिए, मतलब स्टेज को फेस करने के लिए उतना रेडी हो पाएगा? तो ये एक बहुत सिंपल सा है कि जब हम चीज़ों से उसे नेग्लेक्ट करेंगे तो वो चीज़ों में डेवलप, अपने अंदर उस चीज़ को डेवलप नहीं कर पाएगा. क्लियर है? If caregivers
are patient, responsive, and loving in their caregiving ways. Irritable infants can grow to be emotionally happy. अगर केयर गिवर्स फैमिली मेंबर्स बच्चे के लिए पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं तो जो उसकी इरिटेबिलिटी है वो दूर होने के चांसेस बन जाते हैं. They use movements, facial expressions and sounds to communicate basic comfort and discomfort. At birth, use movements, facial expressions and sounds to communicate basic comfort or discomfort. First few months, infants display a range of emotions as seen through their facial expressions. मतलब पैदा होने के कुछ टाइम बाद वो अपने एक्सप्रेशंस अपने इमोशंस जो हैं वो फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू प्रेजेंट करने लगते हैं. Between 6 to 9 months, infant will begin to show fear, anger and anxiety. मीन्स यहाँ से वो जैसे मैंने सोशो इमोशंस की बात करी है तो वो सोशलाइजेशन को भी देखने लगा है. कोई गुस्सा कर रहा है तो वो गुस्सा भी सीखने लगा है, राइट. By the end of second year, children have developed many ways to express their emotions. अब तक वो बहुत सारी चीजें सीख चुका है तो वो बहुत सारी तरह से अपने इमोशंस को प्रेजेंट करने लगा. उसने डेवलप कर लिया है अपने अंदर उन चीजों को तो वो एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारी वेज उसने देख लिए हैं. Emotional quotient, the set of skills people use to read, understand and respond intelligently to the emotional signals sent to us both by others by empathy, emotional self-awareness, stress tolerance. Emotional quotient is least partly inborn. It's lessons of childhood that one learn how to handle innate tendencies and emotions. EQ measures aspects of emotions and the personality. Child with high IQ may be imbalanced when it comes to emotions. Parents can help children develop their emotional side. Percentage is based on IQ, but success is based on EQ. Means आप जो नंबर लाते हैं, जो मार्क्स लाते हैं, जो परसेंटेज लाते हैं, इज बेस्ड ऑन IQ. लेकिन जब आप किसी अपने करियर के लिए जाते हैं, अपना कुछ सेटअप करते हैं या जॉब में जाते हैं, देन वहां पे आपका इमोशनल क्वोटिएंट मैटर करता है. मींस आप परसेंटेज अपने इंटेलिजेंस से ला सकते हैं लेकिन सक्सेस अपने इमोशंस के थ्रू भी आपको करनी होती है. अगर आपका इमोशनल ही बैलेंस नहीं होगा, आपको कहाँ कैसे प्रेजेंट करना है, तो आपके सक्सेस में दिक्कतें आती हैं, राइट. Parents' attitude and emotions have profound effect on the emotional development of children. That's clear कि हमारे पेरेंट्स हमसे जैसा, अगर मैं बच्चों की बात करूं, बच्चों के पेरेंट्स प्लीज शांत हो जाइए, जैसा बच्चों से बिहेव करेंगे तो उनको वैसा ही अफेक्ट होता है उनके डेवलपमेंट में, वो वैसा ही सीखते हैं. फैमिली एटमॉस्फेयर, नंबर ऑफ सिबलिंग्स, पेरेंट्स ऑन डेवलपमेंटल हिस्ट्री with his her own parents. परिवार का माहौल और बच्चे का बर्थ नंबर अगर बड़ा है तो उसका डेवलपमेंट अलग होगा और अगर उससे कोई छोटा है तो उसका डेवलपमेंट अलग होगा. फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट. हेरिडिटरी फैक्टर, मैच्योरेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ,
intelligence, family relations, social environment, control over emotions. अगर हम इमोशन डेवलपमेंट की बात करें तो हेरिडेटरी फैक्टर भी आता है। मीन्स अगर हम अपने फैमिली के मेंबर्स को जैसा है, मतलब उनके थ्रू हमारे अंदर चीजें आ रही हैं, राइट। मैच्योरेशन है, जैसा हम देखते हैं वैसा ही हम आगे परसीव करते हैं। ट्रेनिंग है कुछ चीजों के लिए, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया स्टेज के लिए, ऐसा ही अगर हम घर में किसी बच्चे को है, बच्चा कोई काम नहीं कर पा रहा है, किसी चीज के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है, बट अगर पेरेंट्स या केयर गिवर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, आप कर सकते हो, देन ये ट्रेनिंग भी उसके डेवलपमेंट में अफेक्ट करती है। उसका हेल्थ, अगर हेल्थ अच्छी है तो वो चीजों के लिए बेटर रहेगा, राइट। इंटेलिजेंस, नेक्स्ट इंटेलिजेंस मीन्स अगर वो चीजों को समझ पा रहा है तो नेक्स्ट वो आगे कर भी पाएगा, मीन्स उसका लेवल डेवलप होता जाएगा। फैमिली रिलेशंस वो कैसे हैं, अगर फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट है तो बच्चे पर ध्यान कितना होगा फैमिली का, तो बच्चा देखेगा क्या, या मतलब उसके डेवलपमेंट में चीजें क्या आएंगी। सोशल एनवायरनमेंट, जहाँ पे वो रह रहा है, फैमिली अच्छी है, फैमिली का एनवायरनमेंट अच्छा है, बट सोशल, प्लीज शांत हो जाएंगे आप। कंट्रोल ओवर इमोशंस, बाकी अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना कैसे है, कैसे नहीं करना है, कहाँ पे कंट्रोल करना है, बच्चों को कैसे सिखाया जाता है, यही कि इनकेस अगर वो कहीं पे कर रहा है, लाइक कोई सैड मोमेंट है और बच्चा हंस रहा है, तो उसे बताया जाता है, मतलब सिखाया जाता है, तो इन चीजों के थ्रू ही आती हैं चीजों पे वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है। अगर हम बात करें कि अगर किसी बच्चे का इमोशनल क्वोटेंट उतना प्रॉपर नहीं है, उतना अच्छा डेवलप नहीं है, तो उसके लिए क्या चीजें हो सकती हैं जो बूस्ट कर सकें, तो रोल प्लेइंग गेम्स, प्लेइंग विद पजल्स, coloring with crayons, learning songs and changing them. Thank you. Any question?